Hello, class. Uh, I hope you all are well. Okay, in this video, I'm going to tell you about array program, a simple array program. In last video, I had told you about the array, what is array, how can we create an array, how can we declare an array, and uh, how can we store data into the array. Okay, uh, but in this video we will see how can we write a program with array, how can we input some data into the array, and how can we display that data from array. Okay, come to the point. Just you can see here, this is BlueJ. uh, just double click on that BlueJ. After that, you will see this screen. Okay, in this screen, just click on this new class. Okay, and I'm going to create a class. Okay, here you have to put the class name. I am putting the class name like suppose I am putting prog, prog, prog1. The class name is prog1. Okay, you can put any name, you can write any name here. I am writing the prog1. After that, here you can see this is the class. Okay, and just double click on this class. You see that there are some statements in this program, in this prog class. Here you can see this prog, but uh, you have to delete all this coding. Okay, because there is no need to write your coding in this class. Actually, we have to create this class, but the very simple concept is just delete this, and after deleting you can put your uh, original coding. Okay, like I am going to select all and then delete. After this, just write the program, and just we have to write class name. Okay, first let me increase the size. Here the size is 18. I am going to write the size is 25. Okay, so you can easily see that. Okay, here I think there is some problem. You can see that. Let me set. Okay, okay, just you have to write class name, class, and your class name is prog1 and PSBM. इट मीन्स पब्लिक. यहाँ पर तुमको पूरा फुल फॉर्म लिखना है. PUBLIC, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन and string. S should be capital, string args and square bracket, and in this bracket इस वाले ब्रैकेट में हम लोगों को अपना पूरा प्रोग्राम लिखना है. क्या प्रोग्राम लिखना है? हम एरे का प्रोग्राम करने जा रहे हैं. तो मैंने एक एरे बनाया, इंटीजर a, दिस इज़ द एरे, एंड न्यू int5. ओके, इस तरह से हम लोग एरे बनाएंगे. एरे का हमारा प्रोग्राम हो जाएगा. एरे डिक्लेयर एंड क्रिएट हो जाएगा. और एक लूप चलाने के लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया i. The first question, how can we store data into array? So I am writing the comment line. Here I am putting the comment, input data into the array. Okay, ये हमारा कमेंट हो जाएगा.
ओके चलो कहाँ गया इनपुट, एंड देन यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे कोई भी मैसेज दे देंगे। मैंने मैसेज दे दिया इंटर इनपुट नंबर। ओके ओके, अब मैंने यहाँ पर एक इनपुट कराया, मुझे एरे में डेटा स्टोर करना है, तो मैंने a का 0 A0 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। बट अगर हम sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं तो उससे पहले हमको sc यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमको लेना पड़ेगा, sc डॉट नेक्स्ट इंट हमको लेना पड़ेगा। तो इससे पहले हम यहाँ पर स्कैनर बना लेते हैं, स्कैनर SCANNER स्कैनर SC, यही वाला SC है जो हमको यूज़ करना है। SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर लिखते हैं, सबको पता है, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हमें इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और अगर हम ये स्कैनर का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो तुम लोगों को पता है। क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये लिख दिया जाएगा, तभी ये स्कैनर काम करेगा। ये ऑलरेडी मैंने बताया है सबको, तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, अब ये स्कैनर, ये जो SC ऑब्जेक्ट है, अब ये काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे A0, फिर अगर मुझे दूसरा नंबर चाहिए तो मैंने लिख दिया फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम फिर से लिख देंगे इनपुट नंबर। ठीक है, मैंने फिर से लिख दिया, और फिर लिखेंगे A का 1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इस तरह से हम लोग डेटा इनपुट करा सकते हैं। तो अभी 2 डेटा इनपुट हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पर तुम देख सकते हो 5 का इनपुट लिया है। ठीक है, और अभी तक मैंने 2 डेटा इनपुट किया, एक A के 0 पर और दूसरा A के 1 पर, और हम यहाँ पर 5 डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी 5 डेटा स्टोर करने के लिए हमें 5 टाइम यही लाइन लिखना पड़ेगा, इनपुट नंबर, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, इनपुट थर्ड नंबर, ऐसे करते हुए फिर A0, A1, A2, A3, A4, ऐसे हम लोगों को सारा इनपुट करना होगा। बट अगर हम ऐसे इनपुट करते हैं तो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे एरे का हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने लाइव क्लास में बताया था। अब मुझे एरे का एडवांटेज भी यूज़ करना है, इसलिए अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे A का 0, A का 1, A का 2, A का 3, A का 4, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम लॉजिक लगाएंगे कि हम कम से कम लिखें और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी एक बार लिख करके हम कई बार यूज़ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर I लिया था। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक I यूज़ करेंगे, और I को यूज़ करने के लिए फॉर I इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्सिंग ही बदलना है। I इज़ लेस देन, हमारा साइज़ है 5, एंड I प्लस प्लस, और इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सेट भी कर देता हूँ, ये रहा। ओके, अब यहाँ पर बस हमें चेंज कर देना I, क्योंकि पहली बार मेरे I की वैल्यू है 0, तो जैसे ही I की वैल्यू 0 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर AI मीन्स A0, यहाँ पे देख सकते हो। फिर I प्लस प्लस होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा। I प्लस प्लस 2, दिस विल बी 2, I प्लस प्लस 3, दिस विल बी A3, I प्लस प्लस 4, दिस विल बी A4, I प्लस प्लस 5, एंड यू कैन सी हियर I लेस देन 5, यानी जब तक I 5 से छोटा है तब तक चलेगा। जैसे ही I प्लस प्लस ये 5 होगा, सीधे इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग इनपुट कॉन्सेप्ट कहते हैं। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ इनपुट, कैसे हम लोग एरे में इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एरे का आउटपुट लेना है। ठीक है, तो एरे का आउटपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही तरीका, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे आउटपुट ऑफ एरे। ठीक है, अब आउटपुट ऑफ एरे,
अब इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो तुम बार बार इसको लिखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाऊँ, system.out.println, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि a का 0 एंड टर्मिनेट। फिर यही काम हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर लिख देंगे a का 1, फिर इसी तरीके से a का 2, a का 3, a का 4, ऐसे बार बार हमें करना पड़ेगा। तो फिर वही क्वेश्चन हम बार बार क्यों करें जब हमारे पास एरे है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे, i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस, एंड देन इसके अंदर ये कोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बस हमें i को बदल देना है। हम क्या करेंगे, फिर वही लॉजिक है कि अगर i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर a 0 हो जाएगा, i प्लस प्लस 1 दिस विल बी a1, i प्लस प्लस 2 दिस विल बी a2, i प्लस प्लस 3 दिस विल बी a3। इट मीन्स कि जैसे जैसे i की वैल्यू बदलेगी हमारे इंडेक्स की, एरे के इंडेक्स की वैल्यू भी बदलती जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है जिसमें हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग एरे का इनपुट कर सकते हैं और कैसे हम लोग एरे का आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है ये एरे के आउटपुट के लिए है और ये जो लाइन है एरे के इनपुट के लिए। ये जो मैंने कमेंट बनाया है, मैं इसी तरह का एक और लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलो मैंने ये ले लिया और ये कमेंट वाला पॉइंट हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ इनपुट ऑफ एरे, ताकि ये आउटपुट में समझ में भी आएगा। इनपुट ऑफ एरे, इनपुट डेटा लिख देते हैं, डेटा इनपुट डेटा इन एरे, ओके, एंड आउटपुट ऑफ एरे। तो ये है हमारे पास इनपुट का तरीका। दिस इज़ फॉर इनपुट एंड दिस इज़ फॉर आउटपुट। तो एरे में अगर इनपुट करना है तो हर बार यही तरीका लगाएंगे। मैं यहाँ से बदल देता हूँ, हर बार यही तरीका लगाएंगे, एरे इनपुट एरे आउटपुट। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ज़रा इसको भी देख लिया जाए। अब जब एक बार हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद सीधे हम लोग आते हैं कंपाइल बटन पे कंपाइल कराते हैं। तो जैसे ही कंपाइल कराएंगे देखते हैं क्या कोई एरर आ रहा है। मैं कंपाइल पे क्लिक करने जा रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फाइल सेव, एंड यहाँ लिखा हुआ है नो सेंटेक्स एरर। अगर फाइल कंपाइल करते हैं और नो सेंटेक्स एरर आता है, इट मीन्स हमारा कोडिंग सही है। ठीक है, सबसे नीचे ये पॉइंट तुमको दिखेगा, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जैसे ही कोडिंग तुम कंपाइल पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ सबसे नीचे तुमको दिखेगा क्लास कंपाइल्ड नो सेंटेक्स एरर, इसमें दिख रहा है। हो सकता है इसके स्क्रीन में ना आ रहा हो। ठीक है, स्क्रीन में आ रहा होगा, तुम ज़रूर देखोगे इसको। ठीक है, तुम एग्जीक्यूट कराओगे तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम तुम लोग ज़रूर लिख लेना। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ कैसे इसको रन कराएंगे। जब ये कंपाइल हो जाएगा, नो सेंटेक्स एरर आ जाएगा, फिर इसको हम लोग कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे। रन कराने के लिए इसको क्लोज़ करेंगे, फिर अपने इस क्लास के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मेन। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर लुक आ रहा होगा, लेकिन इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे मेन। मेन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मेन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तुमको मेन ओपन हो जाएगा और ओके बटन पे क्लिक कर देना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाऊँ, राइट क्लिक मेन, यहाँ पे लिखा होगा वाइड मेन स्ट्रिंग args एंड देन ओके बटन। यहाँ पे बस ओके पे क्लिक करना है, कैंसिल मत कर देना। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तुम्हारा प्रोग्राम रन करने, जो अभी तुमने कोडिंग किया है वो रन करने लगेगा और यहाँ पे तुमसे सारी चीज़ें पूछने लगेगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूँ। बोल रहा है इनपुट डेटा इन एरे, जो मैंने इनपुट का मैसेज दिया था। अब यहाँ पे इनपुट नंबर, ये बोल रहा है नंबर देने के लिए, तो मैं एक एक करके नंबर देता हूँ। तो मान लो मैंने दे दिया 11, फिर मैंने इनपुट किया, यहाँ पे दे दिया 22, फिर मैंने दे दिया 33, 44 एंड 55। अब देखना ये 5 नंबर्स हो चुके हैं। जैसे ही मैं इंटर करूँगा सीधे मेरा आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि 5 का मैंने एरे बनाया था। 5 नंबर्स इनपुट हो गए तो 5 नंबर का आउटपुट भी मिलेगा। मैं इंटर करने जा रहा हूँ, मैंने इंटर किया और तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से ये सीधा दिख रहा है आउटपुट ऑफ एरे
11, 12, 11, 22, 33, 44 एंड 55। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरे का इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। बहुत ही आसान है एरे की प्रोग्रामिंग करना। तो अभी जो हम लोगों ने देखा इसमें केवल एरे का इनपुट और आउटपुट देखा। अब इस पे हम लोग और भी प्रोग्राम देखेंगे और भी इस पे कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल इसको तुम लोग प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं लाइव क्लास में या फिर वीडियो की क्लास में उसे सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।